Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya, and in this video we are going to discuss about a very important point for the day, that is study plan for CMAT 2022. Now that notification for CMAT 2022 is out and last date to apply for CMAT exam is 17th of March. So uski hisab se what might be the probable exam date, then how we should prepare in the remaining 45 days. If you have already started your preparation and if this is your revision cycle going on, then how we should revise. If you have not yet started the preparation for CMAT, then still in 45 days, how you can score more than 250 in the CMAT exam. ये सब हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So let us begin. Probable exam dates क्या होते हैं, उसके पहले हम लोग एक प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम कंडक्ट करने के पहले. So जैसे अभी फॉर्म्स आउट हुए हैं, फॉर्म्स चलते हैं यूजुअली 30 डेज तक. उसके बाद अगर मैंने फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी कंसिडर किया तो मिनिमम 7 डेज का टाइम लगेगा टू रिलीज योर हॉल टिकट्स. उसके बाद मिनिमम 7 डेज का टाइम लगेगा टू कंडक्ट द एग्जाम. तो अगर हमने 17th ऑफ मार्च का लास्ट डेट तक कंसिडर किया टू फिल द फॉर्म, सो कम से कम 31st मार्च के पहले तो आपका एग्जाम डेफिनेटली नहीं होने वाला है. एंड दिस इज व्हेन इफ दे फास्ट ट्रैक द प्रोसेस AICTE. अगर उन्होंने फास्ट ट्रैक नहीं किया तो इसमें आप और 15 दिन जोड़ लो और इसमें आप और 15 दिन जोड़ लो, तो लेटेस्ट अगर बहुत डिले भी हुआ तो भी 30th अप्रैल के बाद तो CMAT का एग्जाम नहीं होना चाहिए, इज व्हाट आवर assumption. Okay, so based on this process, the probable exam dates will be anywhere between 31st March till 30th April. The probable exam dates will be anywhere between 31st March to 30th April. तो हम लोग तो worst के scenario के लिए prepare करते हैं. So let us begin with the study preparation plan for 45 days. अगर इसके बाद अगर एग्जाम होती है तो well and good, तो सोने पे सुहागा, आपको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा to take more number of mock tests and to revise multiple times. So before we begin with the details, I would just like to inform you that अनिकेत सर ने एक लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया है ऑन हाउ टू फिल द CMAT फॉर्म्स. ओके, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा. उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में, वीडियो के स्क्रीन के आपके टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा. उसमें उन्होंने हाउ टू फिल द CMAT फॉर्म, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने चाहिए, उसके अलावा CMAT का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड ऑल द अदर पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड. वैसे आपको मैं बता दूं तो लास्ट ईयर तक CMAT 2021 तक जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन था जो ऑप्शनल था, वो अभी कंपलसरी हो चुका है फ्रॉम दिस ईयर. Last year there were extra 25 questions and some extra time was allotted over and above the allotted 3 hours. लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी पेपर हो जाता था, उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि 20 questions into 5 sections each. Quant, DILR, VARC, GK एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वैसे 5 सेक्शंस में 20 क्वेश्चंस ईच ऐसा करके डिवाइड किया है. एंड द टाइम लिमिट इज स्टिल 180 मिनट्स, दैट इज 100 क्वेश्चंस 300 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस 3 आवर्स, एंड द एग्जाम रिमेन्स ऑफ 400 मार्क्स. एंड ऑल द सेक्शंस विल बी कंसीडर्ड फॉर योर स्कोरिंग एंड रैंकिंग. So before we move forward to this the study plan, I would just like to introduce our live online course and classroom course for CMAT and MBA CT, in which we will prepare you for both the exams along with MAT exam. इसमें आपको लाइव सेशंस मिलेंगे conducted by both of us, me and Aniket sir. Both of us have scored 99.9+ percentile in multiple MBA entrance exams like CAT, SNAP, CMAT and MBA CT multiple times. All the live sessions which we'll conduct in your live batches will also be recorded for your revision purpose. If you want to revisit any particular topic in any particular order, then you can revisit those sessions in the recorded format. Also, we will be conducting 3 live batches. You can attend the session, same topic in any of the batches, morning, afternoon and evening. आपको बुक्स मिलेंगे जिसमें more than 10,000 questions, 10,000 practice questions are provided with the explanations, detailed explanations. License content purchase करते हैं हम लोग. Apart from this, you will get mock tests for all the exams, CMAT, CET and MAT. Then मॉक टेस्ट, सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है. मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, उसके ऊपर मेंटरिंग करना, उसके ऊपर डिस्कशंस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके जो हमारा यूएसपी है. यहीं पे हम लोग हर एक स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट केटर टू मोर देन 60 स्टूडेंट्स
फॉर एनी एग्जाम। हम लोग 60 स्टूडेंट्स ही सीईटी सीमेट के लिए पढ़ाते हैं, हम लोग 60 स्टूडेंट्स ही कैट के लिए पढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई इट बिकम्स पॉसिबल फॉर अस टू पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट वी टीच। To know about more details related to the batch timings and the fees of various courses, you can call us on any of the numbers provided in the description box. एंड रिगार्डिंग द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो इन्होंने ये साल से कंपलसरी कर दिया है, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो सीरीज रिलीज करने वाले हैं, जो आपको YouTube पे सेम चैनल पे मिल जाएगी। दैट्स व्हाई टू स्टे कनेक्टेड, टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल, आई वुड आस्क यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सब रिसेंट अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टडी प्लान। सो सबसे इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सेक्शन, सबसे बड़ा स्कोरिंग सेक्शन होता है वर्बल एंड जीके। वर्बल एंड जीके इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो हमने बोल दिया है कि आपको YouTube वीडियोस मिल जाएंगे, वो YouTube वीडियोस की सीरीज भी अगर आप देख लोगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। लेकिन वर्बल एंड जीके इज समथिंग जो जिसका कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता है, तो उसके लिए आप जितना ज्यादा पढ़ते रहोगे और जितना सिस्टमेटिकली पढ़ते रहोगे, एग्जाम फोकस्ड अगर आपका अप्रोच रहेगा, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर इसमें आ सकता है। तो जीके में आप अंडर द सन एमपीएससी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने वालों जैसा पढ़ते रहोगे तो 45 डेज में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप सीमेट के लिए पर्टिकुलरली फोकस करोगे, गोइंग बाय द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ जीके क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके एंड डायनामिक जीके क्वेश्चंस आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर सीमेट एग्जाम्स, लुकिंग एट द स्टेइंग इन टच विद द करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, तो आपका जीके में अच्छा स्कोर आ सकता है। एंड वर्बल के लिए, verbal does not have a does not have a fixed set of words or does not have a fixed set of grammar rules and RCs. ये आप जितना कंसिस्टेंटली एंड जितना फ्रीक्वेंटली इसके टच में रहोगे, उतना ज्यादा आपका वर्बल का वोकैब, ग्रामर एंड आरसी का अप्रोच बढ़ते रहेगा एंड अच्छा होते रहेगा। सो उसके लिए आपने टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर वेट। जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द टॉपिक कि कितने, कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आरसी के कितने क्वेश्चंस आते हैं सीमेट में, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 25 कितने आते थे, तो 20 आउट ऑफ 20 कितने आ सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, जो हम लोग हमारे पहले वर्बल के सेशन में जरूर पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे। देन टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लिस्ट डाउन करो। उसमें आरसी एंड वोकैब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आरसी एंड वोकैब आपको एमबीए सीईटी एंड सीमेट में दोनों में बहुत हेवी वेटेज के साथ आने वाले हैं। देन उसके बाद आपने टॉपिक्स कौन से चूज करने हैं वो आप मार्क्स वर्सेस टाइम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आता है जो 4 मार्क के लिए आएगा और उसको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, तो वो टॉपिक आपने कभी नहीं उठाना है, और मैं सब अभी यही सेशन में वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। So this should be the stepping stone for your dream B school, because CMAT score is accepted across many good colleges, right? So week 1 में if you are starting your preparation, so non-verbal reasoning सबसे पहला आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि you have to maximize your score। मैक्सिमम स्कोर आप कब करोगे, जब आपको रॉ स्कोर आपका कितना है ये पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग यूजुअली रेकमेंड, रॉ स्कोर आपका कितना है ये पता चलने के लिए हम लोग यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट दो। लेकिन क्योंकि हम लोग 31 मार्च के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने वो स्टेप एलिमिनेट कर दिया है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द इजीएस्ट टॉपिक्स फर्स्ट, इजीएस्ट एंड द you comparatively heavier topics which will definitely have minimum 1 question on this। जैसे ब्लड रिलेशन डायरेक्शन स्टेट्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको एलआर में आ जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन डिजिट सीक्वेंस में भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं सीमेट में। तो फर्स्ट वीक में एलआर के आपके 5 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। अभी 20 आउट ऑफ 25 तो ये आउट ऑफ 20 अगर देखें तो 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली हो जाएंगे। वीए को तो हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो देखो, उसके बाद आरसी बेसिक्स स्टार्ट करो, देन फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके साथ आप वोकैब स्टार्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द रूट वर्ड्स एंड ऑल। Then turning to the grammar, nouns and pronouns, which is the easiest part of grammar, and preposition and conjunction। तो पहले वीक में 5 दिन ही प्रिपरेशन करो, मोर देन इनफ है, बिकॉज 5 एलआर के टॉपिक, 5 बीए के टॉपिक एंड 5 क्वांट के टॉपिक अगर आपके प्रिपेयर हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो पांचों के क्योंकि 5 5 5 ऑल द 15 टॉपिक्स विल हैव हेवी वेटेज। जैसे बीए में आरसी, फिल इन द ब्लैंक्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उससे भी ज्यादा पूछे जा सकते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसी एंड एवरेज, इसमें अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस हैं। तो ये आपके 100 में से पहले ही वीक में आपके 15 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करने के लिए आपने 6th डे में रिवाइज करके 7th डे में पहला मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है।
अगर आप में से कोई बंदा ये सोच रहा है कि सर मेरा रिवीजन नहीं हुआ है या मेरे सब टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं हुए, तो आप सबसे गलत ट्रैक पे जा रहे हो, बिकॉज टू कीप चेकिंग द योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन at each stage of your preparation on weekly basis is the most important part of your preparation. क्योंकि वीकली मॉक टेस्ट अगर आप नहीं देते हो तो आपका मॉक टेस्ट देने का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आपका एनालिसिस स्ट्रांग नहीं होते जाएगा, एंड आपकी स्ट्रेटेजी जो बननी चाहिए एट टिल द एंड टिल द डे बिफोर योर एग्जाम, वो बननी ही नहीं अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस नहीं रखोगे तो. सो प्लीज टेक मॉक टेस्ट सीरियसली एंड वन मॉक टेस्ट पर वीक मस्ट बी टेकन. उसका एनालिसिस भी उतने ही अच्छे तरीके से होना चाहिए जिसके लिए हमने स्पेशल रिकॉर्डेड एनालिसिस करके रखा है 2 आवर्स का. ठीक है. एनालिसिस, मॉक टेस्ट का एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए उसका भी एक डिफरेंट अप्रोच होता है. 2 घंटे का 3 घंटे का अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके एनालिसिस के पीछे कम से कम 2 आवर्स आपके इन्वेस्ट होने ही चाहिए. दैट इज नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम, दैट टाइम इज नॉट स्पेंट इन वेन, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर. क्योंकि जो एफर्ट्स मैं दे रहा हूँ उसको करेक्ट करने के लिए मैंने क्या गलती की है ये मुझे समझ में आने बहुत जरूरी है. अगर वही समझ में नहीं आ रहा है तो आप कितने भी ज्यादा एफर्ट्स दो, आपका करेक्शन ही नहीं होगा. Moving forward to week 2, number operations, series analogies, odd one out, coding, decoding, and symbols and notation should be the topics you should choose in next second week. In verbal थोड़ा ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया है. इसके साथ साथ वर्बल में एक चीज ध्यान में रखो गाइस, वोकैब के डेली 5 वर्ड्स अगर आपके हो सके तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये सीईटी के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा. एंड डेली वोकैब का ये बहुत बड़ा पार्ट है. डेली 1 आरसी एग्जाम के 2 दिन पहले तक आपने डेली 1 आरसी सॉल्व करनी चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीड द एडिटोरियल्स ऑफ द न्यूज़पेपर और समथिंग लाइक दैट. डेली 1 आरसी मतलब आरसी पैसेज. आपने हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया गया है, नीचे दिया हुआ है. जो आपके पास जो बुक्स है, हमारे जो बुक्स रहेंगे उसमें से आप डेली एक आरसी सॉल्व पढ़ के उसके ऊपर के क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हो उसको बोला जाएगा डेली 1 आरसी सॉल्व करना, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट नाउ, दिस इज द नीड ऑफ द आवर. Along with this, you'll have to prepare these 5 topics of quant: mixture allegation, time, speed, distance, time and work, data interpretation and mensuration. तो हमने अभी क्या किया है, in second week we have tried to cover almost 40% of the syllabus, which will carry almost 40 questions. करेक्ट, 40 नहीं तो कम से कम 30 क्वेश्चन का आपको तो प्रिपरेशन डेफिनेटली हो चुका है. अभी साथ ही साथ आप इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस देख ही रहे होगे. हम वीकली 2 और 3 वीडियोस रिलीज करने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ अगर हमने जीके के एवरी वीक हम लोग जीके का वीकली वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, तो आप प्रीवियस 6 मंथ्स के भी जीके की वीडियो 5-5 मिनट की वीडियोस है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स हमने नोट डाउन किए हुए हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो ये भी अगर आपने वीकली बेसिस पे कर लिया, हमारे 6 मंथ्स के जो वीडियोस हैं तो एक मंथ का, एंड स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2021. आई से स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 21. तो पहले वीक में आप अगस्त 21 की वीडियोस खत्म करो, सेकंड वीक में आप सितंबर 21 की वीडियोस खत्म करो, थर्ड वीक में आप अक्टूबर तक आओ, फोर्थ वीक में नवंबर में आओ, एंड धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ाओ. तो जीके भी आपका बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर होते जाएगा. थोड़ा स्टैटिक जीके भी आपको अपने एंड पे प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो मैंने जानबूझ के ये 3-4 पॉइंट्स नहीं इंक्लूड किए बिकॉज दिस इज योर डेली एक्टिविटी. मैं फिर से नोट डाउन करूंगा कौन से डेली 1 आरसी विद 5-7 क्वेश्चंस ईच, डेली मिनिमम 5 to 10 vocab वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस, एंड डेली 1 जीके का वीडियो, 1 जीके वीडियो पर डे. करेक्ट, हमने वीक वाइज किया तो एक दिन में आप एक वीक के प्रीवियस मंथ्स के वीडियोस उठा सकते हो. तो ये हो गया आपका सेकेंड वीक में 30 मार्क्स का प्रिपरेशन. एंड इफ यू इंक्लूड दिस आपका 40 मार्क्स का प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा बाय द एंड ऑफ वीक 2. 40 क्वेश्चंस का, नॉट 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस. देन व्हेन वी एंटर वीक 3 वी विल हैव our mock scores of 2 mock tests and we will have a very strong analysis reports of our previous 2 mock tests. आपको अभी तक आपका 40% सिलेबस क्लियर कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग जीके, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड आरसी, वोकैब एंड एलआरडीए वीआई, एवरीथिंग. तो आपका 40% सिलेबस प्रिपेयर होने के बाद आपका अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एरियाज एंड थ्रेट एरियाज आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ वी एंटर इनटू थर्ड वीक विद लेसर नंबर ऑफ टॉपिक्स, because from week number 3 we have to increase the frequency of mocks.
If possible, try to take 2 mocks per week. Try to take 2 mocks per week. तो LR दिया कि आप इनपुट आउटपुट LR के इनपुट आउटपुट डिडक्शन सिलोजिज्म में लीनियर अरेंजमेंट्स प्रिपेयर कर लोगे. लीनियर अरेंजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमबीए सीटी एज वेल. देन VA के अभी हम लोग थोड़ा सेकंड पार्ट में जाएंगे. क्रिटिकल स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशंस एंड पैराडिम्बल्स वगैरह में हम लोग जाएंगे. एंड क्वांट के लीनियर इक्वेशंस, कॉम्पिटिशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी which is almost the last part of your. ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड वीक के एंड तक आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंक्लूडिंग जीके एंड ऑल. तो थर्ड वीक के एंड तक in the 20-21 days you must have solved 20 RCs. You must be prepared with 200 around 150 to 200 vocab words with their synonyms and antonyms because 5 to 7 words per day. So 20 days में आपके around 150 words prepare हो जाने चाहिए. Along with this, you must have completed August, September and October के GK videos from our own channel, and you will have completed at least 4 to 5 innovation and entrepreneurship videos. तो आपका देखो सब सेक्शंस आपके साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो आपको सबको साथ में लेके सबका साथ सबका विकास ये एजेंडा अपनाना पड़ेगा. ठीक है, even though I am not very much politically inclined to into any party, but this is a very good agenda, at least for your preparation of all the sections together. Now we will have third mock test. तो अभी यहाँ से आपने टारगेट रखना स्टार्ट करना चाहिए. So after the preparation of 3 weeks, systematic preparation of 3 weeks, in third mock test you should be able to score around 200 or 200 plus in your mock, and with after analysis you will have a very strong report of your own SWOT, strength, strong topics, weak topics, on opportunities and threats. अभी इसका क्या करना है, जब आप स्ट्रेंथ एंड स्वॉट एनालिसिस करोगे खुद का, तो आपको फोर्थ वीक में जब आप रिवाइज करोगे, फोर्थ वीक में थोड़ा ज्यादा टाइम रखना है, क्योंकि नए टॉपिक्स LR के 2 सर्कुलर रैंकिंग अरेंजमेंट, VA के 2 कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा क्रिटिकल रीजनिंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एंड डेटा कंपैरिजन, डेटा इंटरप्रिटेशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. इसके साथ साथ आपके अभी तक ऑलमोस्ट 30 RCs आपने प्रिपेयर कर लिया बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक. ऑलमोस्ट 200 न्यू वर्ड्स यू हैव लर्नड बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक. ऑलमोस्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 2021 के आपकी जीके के पूरे वीडियोस हमारे चैनल से पढ़ के हो चुके हैं, देख के हो चुके हैं, आपके नोट्स बना के रखे आपने, एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी ऑलमोस्ट आपका 4 वीक में खत्म हो जाएगा. दिस इज क्लोज टू 80%, 80 to 90% ऑफ योर सिलेबस. सो 80 to 90% ऑफ योर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपका स्कोर ऑलमोस्ट 240 टच करना चाहिए. नहीं 240 तो 220 के रेंज में तो आपने फोर्थ मॉक टेस्ट तक पहुंचना चाहिए. अभी यहाँ पे आप जब स्वॉट एनालिसिस किया हुआ है आपने प्रीवियस वीक का, उसमें जो आपके वीक टॉपिक्स थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसका सिर्फ मॉक टेस्ट के पहले 1 घंटे का 30 मिनट्स का रिवीजन अगर आप उसको देते हो तो भी इनफ है. लेकिन वीक टॉपिक्स जो है उसको आपने फिर से अभी 3 to 4 आवर्स वीकली देने चाहिए. जो आपके वीक टॉपिक्स है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग जोन में आना स्टार्ट हो जाने चाहिए. एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी टॉपिक्स. इस पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और मेरे को थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालने के बाद मेरे टॉपिक्स फिर से स्ट्रॉन्ग जोन में आना स्टार्ट हो जाएंगे. कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो थ्रेड्स रहेंगे. इफ यू विल बी, ये आपको एनालिसिस के बाद पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिसमें आप टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हो लेकिन मार्क्स या एक्यूरेसी आपका बहुत कम आते जा रहा है. सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम जहां पे है वो आपके थ्रेड टॉपिक्स है, तो वो टाइप के क्वेश्चंस को आपने अप्रोच ही नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग -1 लेट इट बी 0. ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में से कोई भी 25 क्वेश्चन में बहुत कम लोग ऐसे 25 क्वेश्चन सॉल्व करते थे प्रीवियसली टिल लास्ट ईयर एज वेल, एंड दिस ईयर एज वेल यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल द 20 क्वेश्चंस. तो 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं सॉल्व करने हैं. ठीक है, लेट अस बी रियलिस्टिक. 400 में से 400 नहीं स्कोर करना है, 300 के ऊपर का टारगेट अपना होना चाहिए. धीरे धीरे बढ़ते हैं. अभी 10-10, 20-20 मार्क पर मॉक टेस्ट आपका बढ़ना चाहिए. दैट्स व्हाई वी हैव इंक्रीज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक फ्रॉम वीक 5 ऑनवर्ड्स. सो यहाँ पे नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे. LR, DI, VA, RC, QA के नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे. यहाँ पे हमने कौन का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, एंड फिफ्थ वीक में ऑलमोस्ट LR एंड वोबल का भी हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा. एंड फिफ्थ मॉक टेस्ट के बाद आपका स्कोर अभी 10-10 मार्क पर मॉक टेस्ट से बढ़ना स्टार्ट होना चाहिए. अगर नहीं बढ़ रहा है सो प्लीज रीच आउट टू अस ऑन द गिवन नंबर्स फॉर योर वन-ऑन-वन एनालिसिस. उसके लिए हम लोग चार्ज नहीं करते हैं.
ठीक है, अगर आपको कोई रिकॉर्डेड एनालिसिस भी देखना है, इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए एक्चुअली, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम लोग आपको सेंड कर सकते हैं इफ यू रीच आउट टू अस. सो from 6th week onwards, you just have to take a mock on alternate day. Take a mock on alternate day, because starting from today, after 6 to 7 weeks, we are assuming that exam dates will be out. So mock on alternate days or 2 mocks per week or 2 mocks per week. ये बहुत गंदा हैंडराइटिंग आ रहा है यार नया लैपटॉप ले, उसकी वजह से सॉरी फॉर दैट, पार्डन मी फॉर दैट. बट 2 मॉक्स पर वीक जब आप देते रहोगे तो आपका उतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होते रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग स्वॉट एनालिसिस खुद के पास खुद का रेडी रहेगा, एंड उसी के बेसिस पे आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प रहेगी. अगर उसमें कोई इनपुट चाहिए, सो फील फ्री टू रीच आउट टू अस. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक गाइस. I'll again repeat myself, subscribe to the channel and press the bell icon so that you will be tuned to all the entrepreneurship and innovation and entrepreneurship videos, all the GK videos, and all the relevant updates for CMAT and MBA CT preparation. Chalo guys, thank you very much. Best of luck.